بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد عوان کی وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملک شہزاد عوان نے ہڑتال معاہدے اور ٹرانسپورٹرز کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ جی کاوش بتائیے گا۔ جی صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد عوان نے وفد بابر خان وزیر کے ہمراہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک شہزاد عوان نے حالیہ ملکی ہڑتال کے دوران وفاقی حکومت میں ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے، تاہم وفاقی حکومت کے حوالے سے کچھ تحفظات ابھی تک موجود ہیں۔ وفاقی وزیر کھیل داس کوہستانی نے یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ملک شہزاد عوان نے مسائل کو سنجیدگی سے سننے اور حل کی یقین دہانی پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ جی بہت شکریہ کاوش آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف مہم اور ٹریفک پولیس کے ای چلان سسٹم کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اہم ترین تجارتی مرکز صدر میں ٹریفک کی روانی بحال رہنے لگی۔ صدر کے مختلف مقامات پر اکثر ٹریفک جام رہتا تھا۔ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی کاوشوں کے بعد صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کے قریب ہی پتھارا مافیا کے خلاف آپریشن کے بعد ٹریفک نظام میں بہتری آئی۔ ایمپریس مارکیٹ کے قریب تمام پتھارے ہٹا دیے گئے۔ اسی مقام پر پتھارا مافیا نے پولیس اہلکار لیاقت کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر کی تمام شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہے۔ ماشاءاللہ ابھی کافی فرق آیا ہے اور ہمارے افسران بالا کے احکامات جو دیے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہماری ٹریفک پولیس کافی اپنے ذمہ داری سے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ اچھا کام ہوگا اور عوام کو سہولیات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ہم نے اس کو بندے کو بند کرا دیا تھا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرائی ہے اور مزید ایک دو بندے اور بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی جیسے آئیں گے تو ان کو بھی گرفتار کروائیں گے۔ باقی آپ کے سامنے ہے اور علاقہ پورا کلیئر کرایا ہوا ہے تو انشاءاللہ عوام کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اپنے طرف سے پوری تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا 22واں کانووکیشن ایکسپو سینٹر میں جاری ہے۔ I now request Professor Dr. Faraz Janejo, Dean of Computing and Engineering Sciences, to present the graduates to the President for the conferment of their degrees. Madam President, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Bachelor of Engineering Mechatronics, to which I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me by the Chancellor as President of Zabist University, I admit you to the degree of Bachelor of Engineering Mechatronics and charge you that ever in your life and conversation you do prove yourself worthy of the same. Congratulations. Congratulations, Mechatronic graduates. You may now wear the cap. You are requested to be seated. Thank you, Professor Dr. Faraz Janejo. You may now be seated. This year, 226 students in undergraduate programs are awarded degrees in absentia. Registrar is requested to proclaim the award of degrees in absentia for the undergraduate programs. I request Dr. Muhammad Akil, Registrar Zabist University, to proceed to the podium for proclamation. Madam President, I present to you the list of 200 degrees in absentia who have been examined and found qualified for their respective degrees in undergraduate programs, to which I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me by the Chancellor as the President of Zabist University, I admit 226 candidates in absentia to their respective degrees and undergraduate programs and charge them that ever in their life and conversation they do prove themselves worthy of the same. Thank you, Dr. Akil. Please be seated. Congratulations to the graduates. In order to recognize and acknowledge our students who excelled academically,
Zabist University presents its highest achievers with gold and silver medals. Starting with the gold medalists, this year we have 13 students who are receiving the academic merit gold medals. These students have achieved CGPAs over 3.2 along with the highest in their respective batch. To award the merit gold medals to the deserving candidates, we would like to invite our distinguished chief guest, Madam Chancellor, Board of Governor Member, Madam President, and Vice President Academics to please come forward and present the gold medals. We would like to invite our distinguished chief guest, Madam Chancellor, Board of Governor Member, Madam President, and Vice President Academics to please come forward and present the gold medals. As we announce their names, we request the gold medalists to come up on stage to collect the gold medals. The gold medalists are Zahra Zaman from BS Social Science, Mohammad Shahid Dar from BS Biotechnology, Tawassul Sajid from BS Bioscience, Vaniza Khan from BE Mechatronic, Ariba Tahir from BS Biotechnology, Mohammad Mujibur Rahman from BS Computer Science, Maria Iqbal Khokar from BBA, Hussein Murtaza from BS Accounting and Finance, Maria from BS Artificial Intelligence, Khwaja Jalaluddin Haider from Bachelor of Media Science, Bisma Akil from BS Bioscience. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 22वां कॉन्वोकेशन एक्सपो सेंटर में जारी है। आपको बताएं, ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बच्चों से बदफेली में मुलव्विस खतरनाक सीरियल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला और मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान के इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में मरकजी मुलजिम इमरान और इसका साथी वकास खान शामिल हैं। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। बच्चों से बदफाली में मुलविस खतरनाक मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। डीएनए रिपोर्ट्स ने राज खोल दिया। ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुफिया इतला और मुतासिरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई की, जिस दौरान मरकजी मुलजिम इमरान और इसके साथी वकास खान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी उस्मान खान सदोजई के मुताबिक साल 2020 से 2025 के दौरान शहर के मुख्तलिफ अजला में बच्चों से बदफाली के 7 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए थे, जिनमें फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही शख्स का डीएनए मैच हुआ। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2025 में 5-6 सालों में जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है वो प्रॉब्ली एक बंदा कर रहा है डीएनए के। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाम 6 बजे से रात 12 बजे के दरमियान बच्चों को बहला फुसला कर साथ ले जाता और मलीर नदी के एतराफ ले जाकर बदफाली का निशाना बनाता था। बच्चों को साइकिल और सैर की लालच भी दी जाती थी। ये शाम को 6 से रात 12 बजे तक ये काम करता था। ये सैटरडे संडे को मोस्टली ये काम करता था। ये बाइक पे बच्चे को ले जाता था और मलीर नदी पे ये इस तरह की हरकतें करता था। 6 साल से ये एक सिमिलर किस्म का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि एक मुकदमे में 2 से ज़ायद अफराद भी मुलविस थे। मुलजिम इमरान को महमूदाबाद पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां जुडिशनल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध जावेद आलम ओधो और कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दिया। तफ्तीशी टीम के लिए तारीफी इस्नाद और नकदी इनाम का भी ऐलान किया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने शहरियों से अपील की है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। डिजिटल हेल्थ केयर की जानिब से एक और कदम, मुफ्त अद्वियात और जदीद सहूलियात अब एक छत तले मिलेंगी। वफाकी वजारत सेहत के तहत कराची में दूसरे डिजिटल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। जेक लाइन में कायम सेंटर का इफ्तिताह वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब मरीजों का इलाज जदीद टेली मेडिसिन के जरिए मुमकिन हो सकेगा। बैरून मुल्क डॉक्टर भी मरीज का लाइव वीडियो कॉल के जरिए मुआयना कर सकेंगे। आज टेली मेडिसिन की इस टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर कहीं दूर बैठकर, अभी यहाँ पर जिस मरीज को डॉक्टर साहबा देख रही थी वो कहाँ बैठी थी? वो दुबई में बैठकर यहाँ पर वो डॉक्टर देख रही थी। वो दुबई में बैठकर अभी हमने देखा आपके कैमरों ने, वो जो डॉक्टर साहबा ऑनलाइन थी वो असाइन हुई है दुबई से इस हॉस्पिटल के लिए।
वफाकी वजीर सेहत ने निशानदही की कि शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 70% मरीज़ मामूली नौयत के होते हैं, जिसके बायस संगीन मरीजों को बर वक्त इलाज में मुश्किलात पेश आती हैं। डिजिटलाइज BHUs इस दबाव को कम करने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अब इसे उन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया कि हम इसे फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एक सेकेंडरी लेवल के सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जहां पर राउंड दी क्लॉक यहाँ पर डॉक्टर होगा, दवाएं होंगी, लैब्स होंगी, और किसी को अब जो है वो बड़े अस्पतालों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस इलाके के लोगों को। ये प्रोजेक्ट उन्होंने इसमें जो है वो अप्रूव किया है। मुस्तफ़ा कबाल का कहना था कि पाकिस्तान मरीज़ बनाने की सनत बन चुका है। सिर्फ अस्पताल बनाना हेल्थ केयर सिस्टम नहीं, बल्कि असल तवज्जो बीमारियों से बचाव पर होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही फैमिली के शेख अहमद बिन खलीफा अल मखतूम की क़यादत में 7 रुकनी आला सतह वफ़द ने मुलाकात की। इस मौका पर पाक अमारात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध की जानिब से वफ़द को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाक UAE बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के भरपूर ताउन को कदर के निगाह से देखते हैं। चाहते हैं अमाराती सरमाकार SIFC से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी करें। अमाराती वफ़द ने गवर्नर सिंध की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया। शेख अहमद बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता बरादराना है। शहरी तो शहरी, अब यूट्यूबर भी डकैतों के निशाने पर। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहसिन को दिन दहाड़े हैदरी के इलाके में लूट लिया गया। दुर शहवार से जो इस वक्त मुसासरा यूट्यूबर के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कराची पुलिस की जानिब से दावे तो बड़े, इतने हद तक जो है कमी कर दी। गुज़िश्ता साल इतने डकैत हमने गिरफ्तार किए, इतने डकैत जो हैं पुलिस मुकाबले में हलाक हुए, लेकिन कारकर्दगी में सच्चाई कितनी है, इस पे बात करने के लिए इस वक्त में एक शहरी और एक यूट्यूबर मशहूर नामी ग्रामी मोहसिन के साथ हो, जो इस डकैती का जो है शिकार हुए। मोहसिन, ये बताइएगा किस तरह से डकैती की वारदात पेश आई? रोड पे रश था, मतलब आप देखें पोस्ट ऑफिस भी खुला हुआ था, वहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस है वो भी था, और चहलकदमी थी, लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, और बड़े तसल्ली से उन्होंने लूटा। लोग भी देख रहे थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। और जब 2 बंदे आए 70 पे थे, उनकी नंबर प्लेट भी नहीं थी, और रुमाल डाल के शलवार कमीज़ में थे। बड़े तसल्ली से मोबाइल लूटा। सबसे पहले तो वो गया हमारे कैमरामैन के पास, उसका मोबाइल लिया। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने, चूँकि वो माइक भी अटैच था उसका, वो माइक भी चला गया साथ। फिर उसके बाद फिर उसने कैमरामैन का बोला तू अपना मोबाइल भी दे, फिर उसने अपना मोबाइल भी दिया। उसके बाद फिर मेरा मोबाइल लिया, मेरी घड़ी भी उतारी। उसके बाद बड़े मज़े से तसल्ली के साथ वो लोग वहाँ से निकल गए। बताइए, ये कितनी देर का जो है ये ड्यूरेशन जो आप बता रहे हैं, तो बड़ी मुतमईन, इत्मीनान, तसल्ली बख्श उन्होंने चोरी की है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का ये वक्त था। उसी दिन उसी थाने की हुदूद में मजीद और भी वारदात हुई हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस की जानिब से तो हमेशा अच्छा है बताने की जो है वो एक चेहरा दिखाया जाता है पुलिस का कि हम इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी जो है गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लेकिन अगर इतनी गिरफ्तारियां अमल में आती हैं तो ये लूटने वाले कौन है जो दिन दहाड़े शहरियों को लूट के जाते हैं? जी, सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर-ए-एहतमाम स्मैक 2026 की इख्तितामी तकरीब चांसलर सैयद यूनिवर्सिटी मोहम्मद अकबर अली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्मैक में फातह टीमों में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। जी देखें, सर सैयद यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम जो है एक तकरीब मुनक़िद की गई है स्मैक के नाम से, जहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ सर सैयद यूनिवर्सिटी जबकि इसके साथ साथ जो है कराची की दीगर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उससे भी जो है वो तलबा ने बड़ी तादाद में इस स्मैक जो इवेंट मुनक़िद किया गया था इस पर शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ जो है चांसलर अली अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि सर सैयद यूनिवर्सिटी हमेशा टेक्नोलॉजी में जो है आगे रही है, और अब जो है वो बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यूथ इससे जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं और दुनिया में भी नाम रोशन करते रहे। आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 10 साल का सफ़र है स्मैक का, जो 2016 में शुरू हुआ था और अब 2026 है। 10 साल के सफ़र में बहुत तरक्की स्मैक ने की है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि इसमें ना सिर्फ स्टडीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और
फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है जहन और जिस्म की नशोनुमा के लिए। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन होते हैं। इसमें ना सिर्फ सर सैयद यूनिवर्सिटी बल्कि दूसरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी हिस्सा लेते हैं। इसमें गेम्स भी होते हैं, टेबल टेनिस वगैरह जो फिजिकल आपको और आर्म रेसलिंग वगैरह चैलेंज करता है। और फिर अच्छा सर, अभी कोई मुकाबले भी करवाए गए थे जिसके तहत जो अब हम देख रहे हैं कि इनामात भी यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी बता देंगे? जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि इसमें ना सिर्फ फिजिकल मुकाबले होते हैं बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर के भी मुकाबले होते हैं, इसमें चेस के भी मुकाबले। तो सिर्फ स्टडीज सिर्फ नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है ताकि जब वो इंडस्ट्रीज में जाएं तो उनको प्रैक्टिकल तजुर्बा हासिल हो। और अब जो है हमारे साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज वाले स्पॉन्सर्स भी हैं जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं कि जब वो यहाँ से डिग्री के बाद क्या होगा तो उनको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा ये स्मैक का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया सर, तफसीली तौर पे आप बता रहे थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दें इस तकरीब के हवाले से कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर ना सिर्फ जो वो स्टूडेंट्स, उनके साथ जो वो टीचर्स और इसके साथ जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके अहल खाना ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की है। और इनकी जानब से यही कहा जा रहा था कि ज़हनी सुकून के तौर के साथ साथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, जिसके तहत जो यहाँ पर स्मैक का ये इवेंट करवाया गया जिस पर जो है मुकाबले करवाए गए स्टूडेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के डिपार्ट के हवाले से, जिसके तहत जो यहाँ पर मुकाबले के बाद आज तकरीब रखी गई जिस पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो कि फाते हैं, फाते टीम और इसके साथ साथ जो रनर अप और दीगर हैं उनको इनामात भी यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं। जी, कॉर्न आइसक्रीम तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी कॉर्न कॉफ़ी पी है? जी हाँ, कराची में इन दिनों कॉफ़ी के शौकीन अफराद के लिए एक नया और मुनफरिद जायका तवज्जो का मरकज़ बन गया है। आखिर ये मुनफरिद कॉर्न कॉफ़ी क्या है, कैसे तैयार की जाती है, मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो इन दिनों मौसम खासा ठंडा है और ठंडे मौसम में जो खाने का मज़ा है वो भी दुबाला हो जाता है। इस वक्त आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं कि बाद मौसम की हो रही है और कॉर्न का जो तस्वुर है आइसक्रीम का वो गर्मी में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में ये आइसक्रीम कॉर्न नहीं बल्कि कॉफ़ी है। जी हाँ, ये एक कॉफ़ी है जिससे कॉर्न क्राफ्ट कॉफ़ी कहा जाता है और पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई है और कॉफ़ी लवर्स यहाँ का रुख करें। तो आइए इससे जानते हैं कि इस कॉर्न कॉफ़ी की क्या ख़ास बात है और ये यूनिक आइडिया कैसे इनके ज़हन में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, देखने में तो ऐसा लगता है कि आइसक्रीम है मगर ये कॉर्न कॉफ़ी क्या मुख्तलिफ है, किस तरह से ये आइडिया आपके ज़हन में? ये आइडिया हमें आया, हमारी मैडम है जो ऑनर्स हैं, वो गए थे कहीं बाहर ना, तो उन्होंने वहाँ ये कॉन्सेप्ट देखा, तो वो यहाँ आकर उन्होंने कहा कि हम क्यों ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाएं। तो फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम कॉर्न में कॉफ़ी क्यों ना सर्व करें। बिल्कुल, कॉर्न की अगर बात करें, नॉर्मली जो कॉर्न है, अगर आप आइसक्रीम कॉर्न की बात करें तो वो आइसक्रीम खाते खाते ही मेल्ट हो जाती है, तो ये कोई खास किस्म की कॉर्न है? बिल्कुल, ये हमारी होममेड कॉर्न है, हम खुद बनाते हैं, इसे खुद तैयार करते हैं और उसके बाद इसमें हम कॉफ़ी सर्व करते हैं। इसके अंदर चॉकलेट की लेयरिंग हुई हुई है, तो कॉफ़ी मेल्ट नहीं रहती। तकरीबन इसमें 1.5 आवर जो है इसमें कॉफ़ी स्टिल रहती है। बिल्कुल जी, ये है कराची वालों के लिए एक मुनफरिद कॉफ़ी का अंदाज। यूँ तो आपने कॉफ़ी बहुत बार पी होगी मगर कॉर्न में कॉफ़ी पीने का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है और ये एक नया एक्सपीरियंस अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी इस ठंडे मौसम में कॉर्न कॉफ़ी क्राफ्ट के मज़े उड़ा सकते हैं। जी, नाज़रीन, ज़र मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में 2 दहाइयों में ट्रैक्टर की सबसे कम फरोख्त रिकॉर्ड। दिसंबर 2025 में ट्रैक्टर की फरोख्त 2 दहाइयों की सबसे कम सतह 24,724 रही। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। ज़र मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में ट्रैक्टर की फरोख्त कम तरीन सतह तक गिर गई। पाकिस्तान में 2 दहाइयों में ट्रैक्टर की सबसे कम फरोख्त रिकॉर्ड। दिसंबर 25 में ट्रैक्टर की फरोख्त 2 दहाई की सबसे कम सतह 24,724 यूनिट रही। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माहिर मशहूद खान का कहना है कि ट्रैक्टर की फरोख्त में कमी एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत प्लानिंग करना होगी। रिजल्ट ये है कि देखें, आपने ट्रैक्टर इंडस्ट्री अगेन अभी चैलेंजिंग में है। लास्ट 2 इयर्स जो सेल टैक्स लगा था उसका इम्पैक्ट अभी तक इंडस्ट्री में, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट मौजूद है। और 2025 में गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ट्रैक्टर पॉलिसीज लाने की कोशिश की है।
वो ट्रैक्टर पॉलिसी डेफिनेटली ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में एक साल के मुकाबले ट्रैक्टर की फरोख्त में 14,756 यूनिट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। साल 2024 में ट्रैक्टर की फरोख्त 39,480 यूनिट्स रही थी। साल 2017 में 66,369 ट्रैक्टर की फरोख्त बुलंद सतह थी। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 21।